Good morning, student. Today's board question are going on continuous. Question number 6. If A is equal to 5 minus 3 minus C2 and B inverse is equal to 3 2 0 minus 1. Find the value of A inverse and AB का whole inverse. Solution. We know that A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A and AB का whole inverse is equal to B inverse A inverse. Firstly, we find cofactor matrix of A, C11, C12, C21, C22 is equal to 2, 3, 3, 5. Suppose that this matrix is C, adjoint of C, cofactor matrix का transpose 2, 3, 3, 5. Determinant of A 0 minus 9 is equal to 1. So A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. तो determinant value 1 है, 2, 3, 3, 5. Now AB का whole inverse is equal to B inverse A inverse. Put the value of B inverse A inverse. 3, 2, 1 minus 1, 0 minus 1. 2, 3, 3, 5. By multiplication of matrix, we get 12, 19, minus 3, minus 5. Question number 7. If A is a square matrix of order 3 and determinant of A is equal to 9, find the value of determinant 2 adjoint of A. Solution. We know that determinant of K adjoint of A is equal to K की power n, determinant of A की power n minus 1. So determinant of 2 adjoint of A is equal to K की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3. डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 9 है, 9 की पावर 3 माइनस 1. 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8. 9 की पावर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 9, 81. 8 मल्टीप्लाई बाई 81 गिव यू 648. क्वेश्चन नंबर 8. Determinant given 4 minus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 minus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 minus x is equal to 0. Find the value of x. ये सोल्यूशन है, इसको फाइंड करना है x की वैल्यू. बाय ऑपरेशन c1 रिप्लेस बाय c1 प्लस c2 प्लस c3 वी गेट x plus 12, x plus 12, x plus 12. C2 C3 वैसे लिख दीजिए. 4 plus x, 4 minus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 minus x is equal to 0. Taking x plus 2 common along C1. x plus 12, 1, 1, 1, 4 plus x, 4 minus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 plus x, 4 minus x is equal to 0. Now R1 replaced by R1 minus R2, R2 replaced by R2 minus R3. We get x plus 12, 0, 0, 1, 2x minus 2x, 4 plus x, 0, 2x, 4 minus x is equal to 0. Expand the determinant x plus 12 along to C1. So 1, 4x square minus 0 is equal to 0. X plus 12 is equal to 0. X is equal to minus 12 and also x is equal to 0. Value of x is equal to 0 minus 12.
क्वेश्चन 9, प्रूव दैट 1x x स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। दिस इज होमवर्क। करना क्या है आपको, सुनो, R2 माइनस R1 R3 माइनस R1 फिर कॉमन लेके हो जाएगा। दिस इज होमवर्क। प्रूव दैट अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा गामा माइनस अल्फा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। प्रूफ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस गामा बीटा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। C1 replaced by C1 plus C2 plus C3. We have, C1 replaced by C1 plus C3. C1 plus C3 only. We have alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma, alpha plus beta plus gamma. अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। टेकिंग कॉमन एलॉन्ग टू C1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर बीटा प्लस गामा गामा प्लस अल्फा अल्फा प्लस बीटा। Now R1 replaced by R1 minus R2, R2 replaced by R2 minus R3. Taking alpha plus beta plus gamma 0 0 1 alpha minus beta alpha plus beta alpha square minus beta square is equal to alpha minus beta alpha plus beta. By identity a square minus b square is equal to a plus b a minus b माइनस अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा बीटा प्लस गामा माइनस कॉमन लेंगे तो बीटा माइनस गामा गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। टेकिंग अल्फा माइनस बीटा इन R1 एंड बीटा माइनस गामा इन R2 वी हैव अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 1 अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा गामा स्क्वायर माइनस वन अल्फा प्लस बीटा। एक्सपेंड द डिटरमिनेंट एलॉन्ग टू C1 अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस गामा। I can write as alpha minus beta beta minus gamma gamma minus alpha alpha plus beta plus gamma is equal to right hand side, hence proved. Question 11 is homework. If a is equal to 1 2 minus 3 3 2 minus 2 2 minus 1 1, find a inverse and also solve the given equation x plus 2y minus 3z is equal to 6 3x plus 2y minus 2z is equal to 3 2x minus y plus z is equal to 2. This question is very most important for board exam. You can take for homework. Question 12, prove that b प्लस c का होल स्क्वायर a स्क्वायर बी सी c प्लस a का होल स्क्वायर b स्क्वायर सी a प्लस b का होल स्क्वायर c स्क्वायर ए बी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। प्रूविंग डेल्टा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी प्लस ए का होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए प्लस बी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी। ऑपरेटिंग C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 माइनस 2C3 मैंने C1 और C2 के ऐड करना है
और C3 में 2 का मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करना है। ऐसा करेंगे तो आप आएगा वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी सी सी ए बी। टेकिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन along to C1, we get a square plus b square plus c square, 1 1 1, a square b square c square, b c c a b। Now operating R1 replaced by R1 minus R2, R2 replaced by R2 minus R3, we get delta is equal to a square plus b square plus c square, 0 0 1, a plus b a minus b, b plus c b minus c, c स्क्वायर माइनस कॉमन लेंगे माइनस सी ए माइनस बी, माइनस ए कॉमन लेंगे बी माइनस सी ए बी। टेकिंग a minus b and b minus c common in R1 and R2 respectively, we get delta is equal to a minus b, b minus c, a square plus b square plus c square, 0 0 1, a plus b, b plus c, c square, minus c minus a, a b। Now R2 replaced by R2 minus R1, we get delta is equal to a minus b, b minus c, a square plus b square plus c square, 0 0 1, a plus b, c minus a, c square, minus c minus c minus a b। Taking c minus a common along R2, we get a square plus b square plus c square, a minus b, b minus c, c minus a, 0 0 1, a plus b 1 c square, minus c 1 ab। R1 replaced by R1 minus a plus b R2, we get delta is equal to a square plus b square plus c square, a minus b, b minus c, c minus a, 0 0 1 0 1 c square, minus c minus a minus b 1 ab। Expand the determinant along to R1 or C1, we get delta is equal to a square plus b square plus c square, a minus b, b minus c, c minus a plus b plus c। This is right hand side, hence proved। Now we will solve question number 13. If a is equal to 2 0 0 minus 1 2 3 3 3 5, find the value of a into adjoint of a। Solution: a is equal to 2 0 0 minus 1 2 3 3 3 5। Firstly we find determinant of a, 2 10 minus 9 is equal to 2। Co-factor matrix of A as C is equal to C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। C11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, C12 का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, C13 मीन्स हुआ पहला रो थर्ड कॉलम, C21 का मतलब मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C23 का मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, C31 मीन्स थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, C32 मीन्स थर्ड रो सेकेंड कॉलम, C33 मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम। कोई कन्फ्यूजन है यहाँ समझ लीजिए, एक बार और मौका दे रहे हैं आपको। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स होता है -1 की पावर रो प्लस कॉलम इंटू माइनस। तो C11
-1 + 1 इंटू माइनस, तो C11 किस मीन्स किसका कोफैक्टर है? 2 का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 जिसमें है उस रो को, उस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो बचता है 2 3 3 5। तो लिख दीजिए 2 3 3 5। इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। -1⁴ प्लस होगा, -1 इवन नंबर होगा तो प्लस होगा, -1 ऑड नंबर होगा तो माइनस आएगा। 10 -9 1। C12 -1 + 2 इंटू माइनस C12 किसका है कोफैक्टर? 0 का। तो सेकेंड फर्स्ट रो में जो सेकेंड एलिमेंट है उसका, और कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को, बचता है -1 3 3 5। -1⁴ गिव यू -5 -9 -14 -+ 14। C13 = -1⁴ इंटू -1 2 3 3 -1⁴ -3 -6 -9। C21 -1⁴2 + 1 -0 0 3 5 -1⁴ 0 into 0 minus 0 give you also 0। C22 -1⁴2 + 2 into -2 0 3 5 -1⁴ give you +1। 10 minus 0 is equal to 10। C23 -1⁴2 + 3 into -2 0 3 3 -1⁵ 6 minus 0 give you -6। C31 -1⁵3 + 1 0 0 2 3 -1⁴ into 0 0। C32 -1⁵3 + 2 into -2 0 -1 3 -1⁵ 6 + 0 give you -6। C33 -1⁵3 + 3 -2 0 -1 2 -1⁵6 4 + 0 give you 4। कोफैक्टर मैट्रिक्स C is equal to C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। C is equal to 1 14 -9 0 10 -6 0 -6 4 adjoint of A। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज CT, रो टू कॉलम चेंज कर दीजिए। तो 1 14 -9 0 10 -6 0 -6 4। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ A into adjoint of A is equal to 2 0 0 -1 2 3 3 3 5 1 0 0 14 10 -6 -9 -6 4। By multiplication of matrix we get 2 + 0 0 0 + 0 + 0 0 + 0 0 -1 + 28 -27 0 + 20 -18 0 -12 + 12 3 + 42 -45 0 + 30 -30 0 -18 + 20 give you 2 0 0 0 2 0 0 0 2। taking 2 common 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम इसको शॉर्टकट तरीके से भी, अगर एक नंबर का यही क्वेश्चन होता है तो कैसे करते हैं? आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। वी नो दैट A adjoint of A is equal to डिटरमिनेंट ऑफ A into I। 2 into I की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
इसी के साथ आपका PT1 का सिलेबस कम्प्लीटली पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। PT1 कंप्लीट हो गया। कल जो है 2 चैप्टर का टेस्ट होगा, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। चैप्टर 3 से दो क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन होगा डिटर्मिनेंट से। अच्छी तरह से तैयारी करके आइएगा। 5 क्वेश्चन मैं दूंगा, उसमें सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। कल की स्ट्रेटजी यही होगी कि हम लोग ईमानदारी से टेस्ट दें, ऑनेस्टली, और हम अपने आप को वेटेज करें कि हम कितनी तैयारी कर चुके हैं। 4 चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। PT1 का सिलेबस आपका इसी के साथ कंप्लीट हो गया। 1 जुलाई से हम लोग या नेक्स्ट टर्म से हम लोग जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो आपका जो है UT2 की ओर चलेंगे, अगला सिलेबस की ओर। कल टेस्ट है आपका 2 चैप्टर का, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। अच्छी तरह से रिवीजन करके आइएगा और टेस्ट दीजिएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।